السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 21 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ، آیت 121 ٹو 129۔ جو شخص بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ اجر کا مستحق ہے، لیکن اجر حاضر ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ہمیں ثواب ہے کئی گنا زیادہ ملے، تو یہ اجر و ثواب کب بڑھ جاتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے کیا کانسیپٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈھیر ساری تلاوت کر لیں اور ہم ڈھیروں قرآن پڑھ لیں تو ہم ثواب کے مستحق ہو گئے، جبکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ غور فکر کرنا، ہر آیت کو سمجھ کے پڑھنا، اور پھر جب سمجھ کے پڑھے گا انسان تو اس کو اپنی زندگی میں بھی لائے گا۔ تو جب اس طرح سے قرآن مجید کو انسان تدبر کر کے قرآن کے آیات اور اس کے الفاظ کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں سے بھی کہیں زیادہ، یعنی کہ 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو اس کے حق سے پڑھنے والا بنا دے، اور یہ قرآن مجید ہمارے حق میں سفارش کرے اللہ سے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 121، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتے اور جو لوگ اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کو مذموم اور اخلاق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں سے جن لوگوں کے کردار کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، تو وہ نیک لوگ ہیں۔ اس آیت میں ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، اور ان مومنوں کو خبر بھی دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کیسے ان کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سارے کے سارے اہل کتاب برے خراب لوگ نہیں تھے، ان کے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کو بھی بجا لاتے تھے۔ اہل کتاب میں سارے لوگ خراب اور بیکار لوگ نہیں تھے، ناخلف لوگ نہیں تھے، ان میں بھی کچھ لوگ اچھے لوگ تھے، لیکن قلیل تھے، تھوڑے سے تھے جنہوں نے کتاب پڑھی اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ ان میں سے چند یہود تھے جو اس کی کتاب کا، یعنی کہ حق کا تلاوت ہی، اس کتاب کا حق ادا کرتے تھے، کتاب کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کی کتابوں میں جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو وہ بجا بھی لائے تھے۔ اور اس میں سے جو چند لوگ تھے تو وہ ان میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد بھی تھے جنہوں نے یہود ہونے کے باوجود بھی اسلام کو قبول فرمایا، کیونکہ انہوں نے کتاب کو سمجھ کے پڑھا تھا اور وہ جانتے تھے میری کتاب میں کیا لکھا ہے، اور وہ اچھے سچے مسلمان تھے۔ اور ان کے بعد اور ان کے سامنے جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ان کو سمجھ میں آیا، ہر چیز واضح ہو گئی، تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے جو کتاب نہیں پڑھتے تھے، ان میں چند لوگ تھے تو کتاب کا حق ادا کرتے تھے۔ تو حق کا تلاوت ہی کے معنی کیا ہے؟ یہاں بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی حق کا تلاوت ہی جو اس سے مراد ہے، تو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اس ذات گرامی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق کے تلاوت کے معنی یہ ہے کہ کتاب الہی، یعنی کہ اللہ کی کتاب کے، اس میں جو حلال ہے اور حرام ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ہے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے، کلمات میں کوئی بھی تحریف نہ کی جائے اور اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جائے، یعنی کہ اپنی طرف سے اس کے الفاظ میں کوئی لمبی لمبی تعویل دے کر کے نا اس کی جو ہے چینج بھی نہیں کیا جائے، معنی مفہوم بھی نہیں چینج کیا جائے، اور احکامات الہی کو بجا لائے۔ تو حق کا تلاوت ہی کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں۔ تو حق کا تلاوتی ہی کے اندر معنی کے اندر آتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن مجید کو
उस तरह पढ़ना जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, जिस तरह से उन्होंने सहाबा को बताया था। और इस तरह से पढ़ना जिस तरह यानी कि तजवीज़ से पढ़ना चाहिए कुरान मजीद को, यानी कि उसकी मखरज उसकी सही अदा हो। उसका हक है ना। अब जैसे कुल है और कुल, काफ और काफ में बहुत फर्क होता है। कुल के माने होते हैं खाइए, और कुल जो काफ होता है बड़ा वाला काफ, उसके माने होते हैं कह दीजिए, है ना। इस तरह से काफ और काफ में बहुत फर्क हो जाता है, पूरे माने ही चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें मखरज सीखने की बहुत सख्त जरूरत है। कुरान मजीद के मखरज नहीं जिसने सीखा तो अल्फाज में काफी जो हो जाता है चेंज हो जाता है। तो कुल के माने होते हैं खाइए, और कुल के माने होते हैं कह दीजिए। और कहाँ जहाँ कहा जा रहा है कुल कह दीजिए, तो वहां ये अल्फाज हो जाता है कि कहा जाता है खाइए। तो नाउजुबिल्लाह माज़ल्लाह पूरा आयत के माने ही चेंज हो जाते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है कुरान सीखना, समझना, तजवीद पढ़ना सीखना। कोई मुश्किल नहीं है, हर शख्स सीख सकता है। कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है ना कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने तो इस कुरान मजीद को बहुत आसान फरमाया है। तो क्या है कोई इसको समझ के पढ़ने वाला? तो है क्या इसको कोई तदब्बर करने वाला? तो कुरान मजीद को इस तरह पढ़ने का हक है जैसा कि उसके कई मतलब बयान किए गए हैं। मसलन इसको खूब तवज्जो से गौर से समझ के पढ़ा जाए। फिर जन्नत का जहाँ पे जिक्र आता है तो वहां पर जन्नत का सवाल करना है, और जहां पर जहन्नम का जिक्र आता है तो वहां पे जहन्नम की भी पनाह मांगनी है। हराम जो है समझ के उस पर अमल भी करना है। फिर इसमें जो भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने हुक्म दिया है उसको बजा लाना है, और इसकी हर गैब की बातों पर हमें यकीन रखना है, उसकी आयत पे तदब्बर करना है। उसके जो भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने अहकामात बताए हैं उन सब पर हमें पूरा पक्का यकीन होना चाहिए। और दरअसल बात ये है कि कुरान मजीद को आप समझ लीजिए कि समझ कर पढ़ना है। जब अल्लाह की किताब को हम समझ कर पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा रब हमसे कहता क्या है, चाहता क्या है, क्या हमारा रब कह रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो इसके अपोजिट होता है। बनी इसराइल में भी इसी तरह से, उनके यहाँ भी इसी तरह अपोजिट सारा काम हुआ। उन्होंने भी उस किताब का हक नहीं अदा किया, तौरात का हक नहीं अदा किया। और इसी तरह से हमारे उम्मत मुस्लिमा ने भी कुरान मजीद का हक नहीं अदा किया, उसको उस तरह नहीं पढ़ा जैसे उसका हक है। उसको उन्होंने किस तरह से पढ़ा? बस रमजान में बहुत सारे कुरान पढ़ ले। कितनी छोटी सी सोच है ना। वो सोचते हैं कि हम 10-10 कुरान पढ़ के जो है इतना सवाब कमा लेंगे कि हम बहुत सारा हमारा जो है नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। और अगर हम समझ के बैठ के पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा? अगर हम समझ के बैठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्यादा एक कुरान हो रहा है, और हमारे नामा अमाल में तो बहुत कम कम नेकियां जाएंगी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो फरमा रहे हैं कि जैसे तुम्हारा नियत है वैसे ही तुम्हारा जो है उसके इखलास पे सारा दारोमदार है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तुम्हारा जो है दारोमदार हर चीज का अमल किस चीज पर डिपेंड है? इंसान की नियतों पे। नियत उसकी हुई कि हम बस ढेर सारा इकट्ठा तो करें, लेकिन हमने ना उसको माने समझा, ना उसके मफहूम समझा, ना हमने अल्लाह की आयत को उसका हक से अदा करने के पढ़ने की उसकी जरूरत समझी। तो फिर क्या समझ में आएगा ना? कुछ समझ भी नहीं आती। इसीलिए कुरान मजीद लोगों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि हम सब क्या है, अजमी हैं, हम सब जाहिल हैं। हम सब मुसलमान, इंडियन मुसलमान है, लेकिन हमें कुछ नहीं आता। हमारी लैंग्वेज भी नहीं अरबी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको समझ के पढ़े। हक का तिलावती ही में मानी यही है कि उसको कुरान मजीद को उसके हक से पढ़ना है। बनी इसराइल में भी कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने तौरात को समझ के उसको हक से अदा करके पढ़ा। तो तभी तो उसमें से चंद लोग थे जो ईमान ले आए थे। बाकी सारी कौम जिन्होंने अपनी तौरात को समझ के नहीं पढ़ा था उन्होंने, और वो सब सब लोग गुमराह हो गए, दालीन हो गए। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन में सब के सब शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताब को समझ कर नहीं पढ़ा था। वो समझते थे ये किताब पढ़ना हमारा काम नहीं है, उलमाओं का काम है। और इसी तरह से आज हम सबका यही सोच है कि हम सब समझते हैं कि कुरान मजीद को हम समझने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है ये समझ के, और हम समझ लेंगे तो हमारे सामने ये सब अल्लाह ताला के अहकामात जाहिर हो जाएंगे, और हम जान लेंगे तो हमें मानना पड़ जाएगा। ऐसी गलत फहमी लोगों में फैली है कि इस गलत फहमी की वजह से लोग कुरान मजीद से दूर हो गए। कुरान से लोगों को दूर कर दिया है इब्लीस ने, ये सब वसवसे डाल डाल के, कि हम जान जाएंगे तो हमें मानना पड़ेगा ना। आप देखिए कि अल्लाह ताला क्या पूछेगा नहीं। मिसाल के तौर पे सामने अगर आपके शेर आ जाए तो हम ऐसा तो नहीं, हम चश्मा लगा के बंद करके आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, कह देंगे कि हमने शेर को देखा ही नहीं। क्योंकि हम जब आंखें बंद कर लेंगे तो हमें तो शेर दिखेगा नहीं। तो जो लोग ये समझते कि हम कुरान पढ़ ले, और हम कुरान नहीं पढ़े और हमें मानना नहीं पड़ेगा, तो फिर वही शेर वाली मिसाल है भाई, कि शेर सामने आ गया और आपने तो आंखें बंद कर ली, और नतीजे में क्या हुआ? शेर तो खा लेगा ना। शेर को तो हर चीज दिख रही है, अपना शिकार भी दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है। शेर तो खा ही लेगा इंसान को, चाहे इंसान आंखें बंद कर ले और चाहे इंसान आंखें खोल दे। अब कुरान मजीद हम समझ के पढ़ लेंगे तो हमारे लिए फायदा है। ठीक उसी तरह उस शख्स के लिए फायदा है कि उसने देखा सामने शेर है, उसने अपनी आंखें खोली, अपने आप को बचाने की कोशिश की और अपने आप को हिफाजत में ले आया, वो भाग के खड़ा हुआ वहां से। तो अगर हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ते हैं तो हमने अपनी आंखें खोल ली है। और अगर हमने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा समझ के, तो ऐसा शख्स है जैसे सामने शेर आ गया, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो अल्लाह ताला के कोई बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला तो आपके हर दिल को,
हर सोच को, हर चीज़ जानने वाला है ना। वहाँ किसको बहाने बनाएँगे? उस अल्लाह को, उस रब को, जो सब कुछ जानता है, एक-एक लम्हा जो हम गँवा रहे हैं। ज़्यादातर तो आज हमारा मामला क्या है, हम तो सिर्फ़ गँवाते हैं ना अपना टाइम, अपना वक़्त। तो अल्लाह को कोई बहाना नहीं बनाने वाला है। अल्लाह ताला तो मुँहों पे ऐसा ज़बरदस्त टेप लगा देंगे कि इंसान बोल ही नहीं सकेगा। ना कोई किसी को उज़्र पेश कर सकेगा, ना किसी के सामने कोई बहाने चलने वाले हैं। कुछ भी नहीं चलने वाला है और कोई भी वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कोई कर सकता अल्लाह से। तो ज़रूरत ये है कि हम सबको चाहिए कि हम सब कुरान मजीद को उसको हक़ से अदा करें, हक़ से उसको पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें, उसको तरतील से पढ़ें, उसको तजवीज़ से पढ़ें, उसको तफ़सीर से पढ़ें, उसको तफ़सीर से देखिए नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, उसको कुरान मजीद को समझ के पढ़ना ज़रूरी। जैसे माशाअल्लाह से आप सब पढ़ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ होते हैं माशरे में जिनको मालूमात भी नहीं होती है या कुछ गलतफ़हमियाँ फैली होती हैं या फिर उनके उन तक की वो बात और पैगामात नहीं पहुँच पाता है और वो क्या समझते हैं कि बस हम कुरान मजीद को रमज़ान में कई गुना अज़र हो जाता है ना हर नेकी का, तो बस कुरान मजीद को हम उठाएँ और ढेर सारा कुरान मजीद पढ़ लेते हैं। ब हालाँकि हमें साल भर हमें नहीं देखा क्या उसमें क्या लिखा है, साल भर हमें नहीं पता हमने खबर की उसमें क्या अहकामात है और हमें जो ज़रूरत पेश आई तो हमने उलमाओं के चक्कर लगाए, इनके चक्कर और उनके चक्कर लगाए। जबकि हर चीज़ का जो है शिफ़ा, हर चीज़ की निजात, हर चीज़ का मसला, हर चीज़ का हल तो कुरान मजीद में है, उस घर के अंदर से मौजूद है और हम दर-दर जाके भटक रहे हैं। तो हक़ का तिलावत ही में सब कुछ आ जाता है कि इंसान कुरान मजीद को समझ कर पढ़े, उस पे गौर करे, उसमें फ़िक्र करे। जैसे बनी इसराइल के पास कुरान थी, उन्होंने उसको समझ के नहीं पढ़ा ना, वो गुमराह हो गए। ठीक इसी तरह से आज उम्मत मुस्लिमा कुरान मजीद को नहीं पढ़ती है समझ के और इसीलिए वो गुमराह है। अल्लाह ताला ने आज हमसे इतनी ज़्यादा हमको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दे दी हैं। हर चीज़ हमारे हाथ में मौजूद है। आज कोई उज़र नहीं है और जितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें इंसान को दी है ना, उतनी उससे पूछी भी जाएँगी। अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुम ढेरों टाइम अपना ढेर सारा टाइम जो थे मोबाइल में तो लगाते थे, क्या तुमको तौफीक नहीं हुई कि तुम कुरान को समझ कर पढ़ते थे? तुमको तौफीक नहीं हुई कि तुमने सारा-सारा दिन अपना पूरा-पूरा टाइम टीवी में गुज़ारा, लैपटॉप में गुज़ारा, इंटरनेट में गुज़ारा, तुम्हारा वक़्त कहाँ गया जो तुमने कुरान मजीद में गुज़ारा? वो वक़्त मुझे हिसाब दो। एक-एक लम्हे का हिसाब लिया जाएगा ना, वक़्त सबसे बड़ी नियामत है इंसान की, एक-एक साँस बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की। तो ये नियामतों की पूछ होगी। तो आज हमारे माशरे में क्या है ना, कुरान मजीद धो-धो के पिलाया जाता हूँ और जो है गिलाफ़ों में सजाया जाता हूँ। और बस उसका वही वाला हाल हो गया है। कुरान मजीद इतना दूर इंसान से हो गया है आज और समझते हैं कि बस ये उलमाओं की पढ़ने की चीज़ है और बस ये कुरान मजीद अपने शेल्फ से बाहर कब आता है? एक रमज़ान के वक़्त और जब घर में कोई एक शादी होती है तो उसकी रुखसती के वक़्त दुल्हन के सर पर रख करके छाँव के नीचे उसको करके भेजा जाता है दुल्हन को। फिर तीसरा वक़्त कब आता है? मौत का वक़्त। जब घर में कोई मरने वाला होता है या फ़ौत हो चुकता है ना, तब पढ़ा जाता है खूब ज़ोर-शोर से। बनी इसराइल को भी तो पीछे छोड़ा है ना हमने, इसीलिए तो हम सब पर सबसे ज़्यादा ज़िल्लत और ख़ौर आज बर्पा हो रही है ना, क्योंकि हमने कुरान मजीद का हक़ नहीं अदा किया। हमने इसको कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ा, जैसा इसका हक़ था। ना हम हलाल जानते हैं, ना हम हराम जानते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा हर चीज़ हलाल जो हलाल है, उसको हराम जानते हैं। यानी कि आज उम्मत पे वो हराम है, लेकिन उसको उन्होंने हलाल समझ लिए है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद नहीं पढ़ा है ना, बस पूछ-पुछौल का सारा काम हो रहा है, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए। बस सामने वाले ने जो भी आपको बता दिया बस वो अमल है। क्योंकि कुरान तो पढ़ा नहीं है ना समझ के। तो हक़ का तिलावत ही जब नहीं अदा करेगा तो जब भी कोई कौम अपनी उसकी तरफ जो नाज़िल की गई है किताब ना, उसका हक़ नहीं अदा करेगी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ज़लील ख़्वार होती है। जैसे बनी इसराइल ज़लील ख़्वार हुए ना, वैसे ही सब के सब ज़लील ख़्वार होंगे। उलाइका युमिनून बिही व मन यकफ़ुर और वो इससे पढ़ने के हक़ के साथ पढ़ते हैं और वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो उसके साथ कुफ़्र करते हैं और वो नुकसान वाला है। अहले किताब में से भी कुछ लोग ऐसे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। हालाँकि वो जानते थे, बूझते थे, उनको सब मालूमात थी। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। वमन यकफुर बिही और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र भी किया और कुछ लोग ईमान भी लिया जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे नेक शख्सियत और बहुत सारे यहूद भी थे जो ईमान लाए थे। हुमुल खासिरून वही लोग खसारा पाने वाले हैं जिन्होंने इस आयत का, इस कलाम का, हक़ तिलावती का इनकार किया। कुरान मजीद को समझ कर नहीं पढ़ा वो लोग खसारा पाने वाले हैं। जिन्होंने तौरात को नहीं पढ़ी वो खसारा पाने वाले हैं। खसारा की मीनिंग क्या है? ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं है। ऐसा नुकसान किसी चीज़ की भरपाई नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एक किसान होता है ना, वो एक फसल पूरी 6 महीने या साल भर में जो एक फसल तैयार करता है, अपना हर चीज़ उसमें लगा देता है। जान, माल, वक़्त सब कुछ लगाता है। लेकिन यकायक वो जो फसल जब तैयार होती है कटने के लिए और उसको समझता है हम इसको सवेरे आके काट लेंगे, ले जाएँगे और हमें बहुत सारा मुनाफ़ा मिलेगा।
यकायक रात में ही उस खेत या फसल में ऐसी आग लगती है कि सारी की सारी फसल क्या हो जाती है, राख का ढेर हो जाती है। तो वो जो किसान होता है वो एकदम कंगाल हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा भी नहीं है, और ऐसा नुकसान जिसकी उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो वो एक वक्त माना भी जा सकता है कि वो किसान है, हो सकता है उसको कोई उधार दे दे, वो फिर से नई फसल तैयार करके खड़ा कर ले। लेकिन आखिरत में अगर कोई इसको किसी को ऐसा नुकसान पड़ेगा ना, कि वो समझेगा कि हमने बहुत सारी नेकियां आगे भेज दी हैं, हमने ढेरों कुरान पढ़ के हमने आगे भेज दिए हैं, लेकिन उसने उसको समझ के नहीं पढ़ा, उसने उसको गौर करके नहीं पढ़ा, उसने उसे तदब्बर करके नहीं पढ़ा, तो फिर खसारा पाने वाले हैं। कुरान मजीद घर में मौजूद है और हमको हलाल हराम नहीं पता, हमको नहीं पता निकाह के अहकामात क्या है, हमें नहीं पता तलाक के अहकामात क्या है, जो आज हलाला करवा रहे हैं, जो जो इस्लाम को लोग बदनाम कर रहे हैं, और जो कहते हैं कि ये इस्लाम आतंकवाद है। मुसलमानों को तो ये चाहिए था कि उठ खड़े होते, उसके खिलाफ बात करते। कहाँ लिखा है, आप मुझे कुरान में दिखाए कि इस्लाम में आतंकवाद है? क्योंकि सामने वाला जो कुछ भी कह लेता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो उसका हक तिलावत नहीं अदा किया ना, हमने तो उसको वैसे नहीं पढ़ा जैसे हम उसको पढ़ने का उसका हक था। तो इसीलिए आज दूसरी कौमें हम पर ब्लेम करती हैं, हमारे कुरान मजीद को ब्लेम करती हैं, उसको बेइज्जत करती हैं। कोई भरे बाजार में उसको जलाता है, कोई भरे बाजार में खड़े होकर उस पर तंज करता है, बताता है, कोई 25 आयतों पे ब्लेम करता है, कोई कोई और आयत पे ब्लेम करता है, और कोई कहता है कि पूरा कुरान ही नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए ना, तो ये जिल्लत और रुसवाई है जो हम सब पर चस्पा कर दी गई है। हम कुरान तो बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन उसका हमने हक नहीं अदा किया। तो वो लोग जिन्होंने कुरान मजीद को कुरान दुनिया में रहकर समझ के नहीं पढ़ा, और बहुत सारे कुरान तो तिलावत तो किए, लेकिन उसका हक नहीं अदा किया, तो वो सब खसारा पाने वाले हैं। जिसने ये समझा हमारे पास तो बहुत सारे कुरान है, हम 10,000 20,000 हमने कुरान अपनी जिंदगी में पढ़ लिए, हमने डेली पढ़े, लेकिन कभी उसको समझा नहीं। देखिए, तिलावत का हम ये कह रहे हैं कि बुरा नहीं कर रहे हैं, तिलावत का बहुत जरूरी है कि तिलावत भी करे इंसान, उसको खूब तिलावत करे, उसको हर आयत उसको हिफ्ज होनी चाहिए, लेकिन उसको माने भी तो मालूम होने चाहिए ना, उसको पता भी तो होना चाहिए कि यहाँ पे क्या अल्लाह कह रहे हैं। जहाँ पे जन्नत का जिक्र आ रहा है और हम इस पे हम रो रहे हैं, और जहाँ पे जहन्नुम का जिक्र आ रहा है वहां पे तो हम हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। और फिर कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान तआला के पास जब हम सोचेंगे कि हमें बहुत सारा, हमें आज हमें नेकियों का पलड़ा बहुत भारी होगा, तो उस वक्त तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने दुनिया में तो सारे काम उसके खिलाफ किए ना, अमल तो हमारे सारे उसके खिलाफ थे। हालांकि हमने तो तिलावतें तो बहुत सारी की थी, ढेरों कुरान मजीद हमने पढ़े थे, हम मस्जिदों में पढ़वाते थे, और फला फला हमारे प्यारे जो फौत हो जाते थे, हम कहते थे फला मस्जिद में, फला मस्जिद में, फला मस्जिद में सब जगह कुरान खानी करवा के हम 25-30 हजार कुरान मजीद अपने महबूब को पहुंचा दे, प्यारे को पहुंचा दे। तो क्या होता, रिजल्ट क्या है? जीरो है। क्योंकि नामाए अमाल उस शख्स के लिए बंद हो जाता है, सिवाय 3 चीजों के ना, कि एक औलाद अगर जो पढ़ती है, एक औलाद उसके पढ़ने का सवाब माँ बाप को पहुंचता है, या फौत होने वाले ने अपनी जिंदगी में अपने माल में से, हलाल माल में से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, या तो वो उसको पहुंचता है, या फिर वो इल्म जो उसने अल्लाह की राह में हासिल किया और दूसरों को पहुंचाया वो उसको पहुंचता है। बाकी हर चीज मुनक़ते हो जाती है। तो चाहे पीछे पढ़ने वाले कितने हजार कुरान मजीद पढ़ने वाले फौत होने वाले शख्स को पहुंचाते, वो नहीं पहुंचता है। गलत फहमियां है, जन और गुमान है, तो खसारा पाने वाले हैं वो सब के सब, जिन्होंने समझा कि ये कुरान मजीद हमारे हक में सिफारिश करेगा, लेकिन उसका हक नहीं अदा किया, उस पे जैसा उसके तकाजे थे उसके तकाजों को नहीं पूरा किया, तो हुमुल खासिरून में वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे। आयत 122, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलाद याकूब, मैंने जो तुम्हें नेमतें तुम पर अता की थी उन्हें याद करो, मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। आयत 123, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअह वला हुम युनसरून। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी को कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स को कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई शिफात नफा देगी, ना उनकी मदद की जाएगी। ये आयत नंबर 22, 122, 123 ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसीलिए इसका सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 124, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया और उन्होंने सबको पूरा कर दिया, तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा। वो अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे रब, मेरी औलाद को भी। फरमाया, मेरा वादा जालिमों से नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ बात आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पे लाई इसीलिए गई है, दरअसल
यहाँ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुछ हालात और वाक़यात शुरू हो रहे हैं और पिछली आयतें जो हमने पढ़ी और ये 2 तरह से इन सब का गहरा ताल्लुक है। एक बात तो ये है कि ये यहूदी, ईसाई और अरब के जितने भी बुत परस्त यानी मुशरिकीन थे, ये तीनों गुरोह जो थे, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा और इमाम मानते थे। बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते थे। मगर हर गिरोह ने अपना-अपना तरीका ईजाद कर लिया था उनके पीछे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरअसल क्या थे? वो तौहीद पर डट गए थे। वो हनीफ़न और मुस्लिमन और बहुत ज़्यादा अल्लाह के इताअतगुज़ार थे। तौहीद पर डटने वाले थे और अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको यहाँ पे बीच में ज़िक्र लाए हैं। बनी इसराइल और मुशरिकीन मक्का और नसारा को उन सबको बताना है कि तुम जिनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो, जिनको बहुत तुम ज़्यादा अपना पेशवा समझते हो, अपना इमाम समझते हो, ज़रा अपने जो इमाम और अपने पेशवा वो तो उनको तो उनके बारे में तो जानो, उनके बारे में तो भी तुम पढ़ो कि वो क्या थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रा गौर तो करो, वो कैसे थे? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने आज़माया था, बहुत सारी चीज़ों से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आज़माया। आज आज़माइश से हम बहुत डरते हैं ना, हम पर अल्लाह ताला आज़माइश ना लाए। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आज़माइश आती है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम की आती है और उन सब में सबसे ज़्यादा जो आज़माए गए हैं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज़माए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से आज़माया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सी चीज़ों से आज़माया। बेकलिमातिन यानी इससे मुराद ही ये बहुत सारी चीज़ों से आज़माया गया। तो वो कलिमात जिनसे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश की और वो पूरा करते चले गए। जब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप अपनी कौम से अलग हो जाएँ, तो वो अपनी कौम से भी अलग हो गए। जब अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया कि वो अपने वालिद को तौहीद की बात पहुँचाएँ, उन्होंने बात पहुँचाई लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़र ने बात कोई नहीं मानी और उनको कहा कि तुम यहाँ से मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जब नमरूद जैसे बादशाह जो एक वक़्त का बहुत बड़ा बुरा बादशाह था, वो अपने आप को खुदा कहने का दावा करता था ना, उसके पास भी अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुम वहाँ पे अल्लाह के पैगामात को पहुँचाओ, तौहीद की बात पहुँचाओ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे सख्त और ऐसे बड़े तानाशाह और इतने ज़्यादा ज़ुल्म करने वाले नमरूद बादशाह के पास भी वो पैगाम लेके पहुँच गए। कोई डर, कोई खौफ नहीं था। आप देखिए कि कोई इंसान कैसे जा सकता है ना, आज हमने और आपसे कहे कोई कि आप उनके फला-फला जो है ना, उनके पास जाके पहुँचाएँ पैगाम दीन का, तौहीद का, तो हम और आप कर सकते हैं क्या? डर के अपने-अपने बिलों में चले जाएँगे ना। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है? जो अल्लाह के सबसे मुख़लिस बंदे थे, खलीलुल्लाह थे, उन्होंने सबसे बड़े जो दुश्मनाने इस्लाम नमरूद को पैगाम पहुँचाया। फिर उसके बदले में वो ईमान भी नहीं लाया और उसके बदले में उसने क्या किया कि इनको आग में डाल दो। आग के हवाले कर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने उस कौम, उस बस्ती से भी उन्होंने हिजरत कर ली। उस सबको छोड़ दिया। अपने बाप, अपनी बस्ती, अपनी कौम को सबको छोड़ दिया। पहले तो उन्होंने सबको हिकमत से समझाया, जब वो नहीं माने तो फिर वो वहाँ से हिजरत कर लिए। फिर मेहमानों के मेहमान नवाज़ी में बहुत ज़्यादा वो आगे थे। बहुत ज़्यादा लोगों की मेहमान नवाज़ी करने वाले थे। और हर तरह से वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाले थे। और अल्लाह ताला ने जब उनको आज़माया कि अपने लख़्त जिगर को जाके एक सहरा वादी यानी मक्का के पास छोड़ाओ, यानी कि हज़रत बीबी हाजिरा और छोड़ आइए इस्माइल को, तो वो छोड़ भी आए जबकि इतने काफ़ी बुढ़ापे में उनको वो मिले थे, लेकिन तब भी वो छोड़ आए। उसके बाद जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब अपनी प्यारी चीज़ को आप कुर्बान कीजिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान तक करने से पीछे नहीं हटे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुर्बान भी करने की कर दिया अल्लाह की राह में। बहुत सी चीज़ों से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, ये तो बहुत थोड़ी-सी थी जो आपके सामने पेश की है। तब जब किसी को अल्लाह ताला आज़माते हैं ना और वो उसमें उसकी आज़माइश में पास हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। उसके दर्जात की बुलंदी होती चली जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़े-बड़े काम लिए और अल्लाह ताला ने उनका नाम बाकी रखा। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान जो आज हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हर नमाज़ में उनका नाम हम सब लेते हैं और उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ना। तो अल्लाह तबारक तआला जब किसी को आज़माते हैं ना, तो उसके बाद फिर उसके दर्जात भी बहुत बुलंद किए जाते हैं। दर्जात की बुलंदी तभी होती जब इंसान आज़माइशों पे सब्र करे और शुक्र करे। कोई नाशुक्री नहीं, कोई बेसब्री ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर काम में कहा अस्लिमतु लिरब्बिल आलमीन, अस्लिमतु लिरब्बिल आलमीन। मैंने सुपुर्द कर दिया रब्बिल आलमीन के लिए। उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने सुपुर्द कर दिया अल्लाह के लिए अपने आप को, जो तमाम जहान का रब है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सी चीज़ों से आज़माया था, बहुत सी बातों से आज़माया था और उन्होंने सब के सब को पूरा कर दिया।
और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बदले में उनको इमाम उन्नास के मनसब पर फायज फरमाया और वो सारे के सारे इंसानों के इमाम हुए, सारे मुसलमानों के इमाम हुए। चुनांचे मुसलमान ही नहीं, यहूदी, ईसाई, हत्ता कि मुशरिकीन अरब सभी उनकी ऐसा एहतराम करते हैं और उनको पेशवा समझते हैं और उनको मानते भी हैं पेशवा। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने उन सबको मुखातिब करा और यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों को बताया। और अल्लाह के जो रसूल थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, ए अल्लाह, ठीक है आप मुझे आज़मा रहे हैं और मुझे इमाम बना रहे हैं, लेकिन क्या आप मेरी औलाद को भी इमाम बनाएँगे? तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, नहीं, मेरा वादा तो जो है ना ज़ालिमों के साथ नहीं है। तो आप देखिए कि इससे एक बहुत कीमती बात पता चलती है, बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस ख़्वाहिश को भी पूरा फ़रमाया, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में ही वजअलना ज़ुर्रियतिन नुबुव्वति वल किताब सूरह अनकबूत आयत 27 में, कि हमने नबूवत और किताब को उसकी औलाद में कर दिया। बस हर नबी जिसे अल्लाह ने मबूस किया और हर किताब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल फ़रमाई, औलाद इब्राहीम में ही ये सिलसिला रहा। तो इसलिए इसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमा दिया कि मेरा वादा ज़ालिमों में से नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बहुत सारे जो ऐसे लोग भी थे ना जो नाखलफ हुए, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए कोई भी वादा नहीं रखा है। तो बनी इस्माइल 2 गिरोह हुए। बनी इसराइल में भी बहुत से नाखलफ लोग थे, तो औलाद किसकी थी ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे। तो आप देखिए एक तरफ तो यहाँ पे पूरी कौम को इमामत से माज़ूल किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक शख्स यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम बनाने का वादा किया जा रहा है। फ़र्क किस चीज़ का है दोनों में? वो अल्लाह के नाफरमान थे और ये यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के फर्माबरदार थे। तो अगर हम सब चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हम मुकर्रब बने और हम सबको वो बेहतरीन नुस्खा मिल जाए कि अल्लाह का हमें मोहब्बत नसीब हो और हम सब अल्लाह की फर्माबरदार बन जाएँ, तो हमें हर कीमत पर अल्लाह के हुक्म को मानना है। हर हर हुक्म पर अल्लाह की पैरवी करनी है। इंसान अपनी औलाद के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है, बल्कि बाज़ औक़ात अपने से भी बढ़कर चाहता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि अच्छा मुझे इमामत दी जा रही है और मेरे बच्चों को भी दी जाएगी क्या? मेरी नस्लों को भी दी जाएगी? फरमाया, इताअत जो भी करेगा वो उसके लिए है। जो अच्छे होंगे उनके लिए है, लेकिन जो ज़ालिम होंगे उनके लिए मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह ने अपने दोस्त को साफ तौर पे बता दिया कि ज़ालिमों से तो मेरा कोई वादा है ही नहीं। वो तुम्हारी औलाद हो, चाहे वो किसी भी बहुत बड़े अंबिया की औलाद हो। यानी कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद बहुत बड़े नबी थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चाहे वो औलाद ही क्यों ना हो, वो बहुत बड़े अगर गुनाह करने वाले होंगे, बुतों की परस्तिश करने वाले होंगे, तो वो उनसे अल्लाह का कोई वादा नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ये बात भी हम सबको पता चलती है कि अगर वालिद है और अंबिया हैं, लेकिन अगर उनकी औलाद ने अगर शिर्क किया है, बुत परस्तिश की है, तो उनके साथ कोई वादा नहीं है अल्लाह ताला का। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना कि मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं है, तो मेरा वादा तो सिर्फ़ नेक स्वालेह लोग से है। तो ज़ालिम से मुराद यहाँ पे वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के साथ अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ताला के साथ लोगों को औरों को शरीक ठहराते हैं, ज़ात में, सिफ़ात में, हर चीज़ में। कहते हैं कि अल्लाह ताला तक तो हम नहीं पहुँच सकते हैं और हमें फला-फला का सहारा लेना पड़ता है, सिफ़ारिश करानी पड़ती है। तो ऐसे ज़ालिमों से अल्लाह का कोई वायदा नहीं है। जो नेक वक़्त होंगे तो उन्हीं से अल्लाह ताला का वायदा है। आप देखिए दरअसल अहम चीज़ यहाँ से क्या पता चलती है, किसी का अंबिया होना भी काम नहीं आएगा, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने उनको कितने रुतबात दिए, कितने दर्जात बुलंद किए, उनसे कितने बड़े-बड़े इंपॉर्टेंट काम लिए जिनको हम अभी आगे पढ़ेंगे और कितने बड़े-बड़े मनसब पे उनको फायज फरमाया, इमामुन नास बनाया, खलीलुल्लाह बनाया। और लेकिन अगर औलाद नाफरमान है, तो फिर वो वादा ज़ालिमों के साथ नहीं है। ज़ालिमों को अल्लाह ताला इमाम नहीं बनाएँगे। और आज उम्मत मुस्लिमा क्या समझती है कि हमने सारी ज़िंदगी जो भी बुरे-बुरे काम किए हैं, तो अगर हम अपनी इस्तग़फ़ार करते हैं, तो ठीक है, फला-फला पीर वली औलिया का हम दामन थाम लेते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत बुज़ुर्गाने दीन हैं। वो हमारी सिफ़ारिश करा देंगे, क्योंकि हमने तो सारी ज़िंदगी बहुत गुनाह किए हैं। तो हम फला-फला पीर का दामन थाम लेंगे और वो हमारी सिफ़ारिश करा देंगे। तो दरअसल क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, मेरा वादा ज़ालिमों से नहीं है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अंबिया होना नहीं काम आएगा, एक ना तो वो अपने बाप को बचा सकेंगे आज़र को, और अगर उनकी औलाद में से भी किसी ने ऐसा किया होगा जो नस्ल ज़ुर्रियत में ऐसे लोग होंगे, तो उनके साथ भी ऐसा कोई वादा नहीं है। तो सोचिए एक आम इंसान जो एक मामूली सी पीर वली औलिया को अगर अपना बना लेता है सिफ़ारिश के लिए, तो फिर उसका क्या हशर होगा, क्या अंजाम होगा ना। पहली चीज़ तो वो पीर वली औलिया
अपने आप से बरी ज़िम्मा कर लेंगे, कह लेंगे अल्लाह ताला हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जब चले गए दुनिया से तो हमें पता ही नहीं था मेरे पीछे क्या हुआ, मुझे किसने क्या बना लिया, सिफ़ारिशी बना लिया, मेरा चादरें चढ़ा ली, क्या करे मुझे नहीं पता। मैं तो फ़ौत हो चुका था, मैं तो आलम बरज़ख में था। दूसरी चीज़ जो लोग उनको इस तरह से जो पुकारते हैं और जिनको फ़रियाद रसी कराते हैं तो उन सबको देखना चाहिए यहाँ पे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद यानी आज़र को, अपने बाप को भी नहीं बचा सकते और अपनी औलाद में से भी किसी को नहीं बचा सकते, तो कहाँ से ये हमारा कोई और बचाने वाला है? सब कुछ जो हमारा बचाने वाला है वो अल्लाह तबारक तआला है। अल्लाह से ही तौबा करी जाए। ठीक है बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह के आगे रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह से माफ़ी माँगे, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के आगे घंटों सर सजदे में रख के रोते रहें। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देंगे। लेकिन अपने गुनाहों को माफ़ कराने के लिए अल्लाह की कसम किसी और की दरगाह पे जाना तो दरअसल क्या है, उसने अपने आप पर जहन्नुम को हलाल कर लिया और जन्नत को हराम कर लिया। कभी भी वो जहन्नुम में कभी भी बाहर नहीं निकल सकता जहन्नुम से, हमेशा वो जहन्नुम में पड़ा रहेगा और जन्नत में कभी जा नहीं सकता। जन्नत ऐसे लोगों पर हराम कर दी गई जिन्होंने अल्लाह के साथ लोगों को शरीक ठहराया। आयत 125 वइज़ जअलनल बैत मसबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मकामि इब्राहीम मुसल्ला वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन व ईमान की जगह बनाई है। तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से वायदा लिया कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से जो इसके बानी और अव्वल हैं, वो बैतुल्लाह की 2 ख़ुसूसियतें अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? मसाबतल लिन्नास, लोगों के लिए सवाब की जगह बना दो। दूसरा माने ये है कि बार-बार लौट कर आने की जगह। मसाबतल लिन्नास की माने 2 हैं, सवाब की जगह और दूसरा माने है बार-बार लौट कर आने की जगह। यानी जो एक बार बैतुल्लाह की ज़ियारत से करके वहाँ से आता है तो उसका दिल बार-बार देखने और बार-बार ज़ियारत करने के लिए बेकरार रहता है। ये ऐसा शौक है जिसकी कभी उसको सुकून नहीं मिलता, बल्कि वो हर रोज़ चाहता है कि अल्लाह के घर बैतुल्लाह का तवाफ़ करता रहे, ज़ियारत करता रहे, उम्रा करता रहे, हज करता रहे। तो आयत ही में यही है कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि हमने बैतुल्लाह को बना दिया सवाब के लिए, लोगों के लौट कर आने की जगह, सवाब और अमन और अमान की जगह। तो अल्लाह तबारक तआला ने खाने काबा को, बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब की जगह बनाई है। मसाबतल लिन्नास के माने क्या है? 2 माने हैं। लोगों के लिए बहुत सारा सवाब और दूसरा ऐसी पुरकशिश कि इंसान बार-बार वहाँ लौट कर आता है। और दूसरी जो खुसूसियत अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हमने इस शहर को बना दिया है अमन की जगह। तो ये अमन की जगह दरअसल यहाँ पर किसी भी किस्म का इंसान को खौफ नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। हर तरह से इंसान बेखौफ हो जाता है। और अल्लाह ताला ने इसको अमन वाला शहर बनाया है। यानी इसमें अगर कोई आमने-सामने दुश्मन भी होते हैं तो वहाँ पे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ को वहाँ पे हराम कर दिया। यानी कि हर तरह से इंसान वहाँ पर जा करके पुरअमन हो जाता है। और अल्लाह ताला ने इस घर को हरम बनाया है, यानी कि हुर्मतों वाला घर बनाया है। वहाँ जाकर इंसान काट उसका एक वसी जगह है, खाने काबा की एक बड़ी-सी जगह है जहाँ पे वो हुर्मत वाला, एहतराम वाला घर कहा जाता है और उसकी काफ़ी लंबी हुदूद है। उस जगह के अंदर ना तो कांटेदार दरख्त काटे जाते हैं, ना जानवरों को मारा जाता है, ना जानवरों को कैद किया जाता है, ना किसी को लड़ाई झगड़ा यानी कि किया जाता है। सामने अगर कोई दुश्मन भी आ जाता है तो इंसान उस वक़्त खामोश रहता है, सब्र करता है। पुरअमन बनाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, हुर्मतों वाला घर है ना वो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको बनाया है लोगों के सवाब के लिए और पुरअमन की जगह बनाई है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। यानी मुकाम इब्राहिम दरअसल क्या है? मुकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करते थे और उस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशानात हैं। अब उस पत्थर को एक शीशे में यानी कि एक शीशे में महफूज कर दिया गया है जिसे हर हाजी हर तवाफ के दौरान बआसानी से देख भी सकता है। और इस मुकाम पर तवाफ मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने का भी हुक्म है। तो इस जगह को मुकाम इब्राहिम कहते हैं। और मुकाम इब्राहिम जो है जिस पत्थर पे कहते हैं तो 2 पत्थर जो थे जन्नत से लाए गए थे। एक जो हजर अस्वद है, दूसरा वो जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के यानी कदमों के निशान हैं। वो भी जन्नत का ही पत्थर है। तो अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया कि लोगों से कि तुम मुकाम इब्राहिम को जा नमाज बना लो।
यानी कि नमाज की जगह बना लो। और वहाँ हमने इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से वादा भी लिया, तो मेरे घर को पाक साफ करो। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम और इस्माईल से ये वादा लिया कि इस घर को पाक साफ कर दो। तो पाकीज़गी दरअसल ज़ाहिरी भी है और पाकीज़गी दरअसल बातिनी भी है। यानी कि अंताहिरा, अंताहिरा से मुराद हर किस्म की बुत परस्तिश और हर किस्म के शिर्क से बैतुल्लाह को पाक रखना है, पाक साफ रखना है। और कूड़ा करकट, गंदगी और जो भी गलाज़त होती है, जो ज़ाहिरी होती है, जो हम सब देख सकते हैं, उससे भी उस घर को पाक रखना है। हर किस्म से बैतुल्लाह को पाक साफ रखा जाए। हर किस्म से नजासत से, हर शिर्क से, हर बिदात से उसको पाक साफ रखा जाए। लेकिन आज हमारा उम्मत मुस्लिमा और ख़ास करके इंडियन और पाकिस्तान वाले ने तो इसमें तो बहुत बड़ा दर्जा हासिल कर रखा है। वो तो ऐसी-ऐसी बिदअत करके आते हैं, जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत से नहीं मिलती है। न जाने क्या-क्या बिद्दतें लोगों ने इजाद कर दी ना, नाम लिखने जाते हैं। कहते हैं हमने नाम लिख दिया ना फला-फला हज उम्रा करने जाएगा। कितनी बड़ी बिद्दत है ना। और हर नेकी काम का काम करना और इंसान जब ये समझ के करे कि हम इसमें हमें नेकी मिलेगी और ये होगा, वो होगा, तो ये सब बिद्दत है। अब देखिए आप ठीक है, आप कोई चाहता है कि आप वो भी उम्रा करें, हज करें, तो आप उसके लिए उस जगह में बैठ के दुआ करें, ना कि सबके नाम हम लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं पर्दे के गिलाफ के ऊपर है ना, ये तो तौहीनी भी है, दूसरी चीज़ क्या है ये सब रस्में? तो इस तरह से ये बिदातों से खाने काबा को पाक रखना है। हर किस्म की बिदात से, हर किस्म के शिर्क से लोग चूमते हैं। अब जहाँ पे मुकाम मुकाम इब्राहिम की जगह है, उसका बोसा लेते हैं। बोसा हर चीज़ का नहीं लेना है, सिर्फ़ हजर अस्वद का बोसा लेना है बस। उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं। जबकि फिर वो जहाँ पे भी जो चीज़ पड़ती है, हर चीज़ को बस वो बोसा ले रहे हैं, बोसा ले रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हुक्म दिया है कि इस घर को पाक साफ कर दीजिए। नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, सबके लिए इस घर को साफ रखें और तवाफ़ करने वालों के लिए। आयत 126 वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरहु इला अज़ाबिन नार व बि'सल मसीर। जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू इस जगह को अमन वाला शहर बना और यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, फलों की रोज़ियाँ दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं काफिरों को भी थोड़ा फ़ायदा दूँगा, फिर उन्हें आग के अज़ाब की तरफ बेबस करूँगा। ये जो पहुँचने की बहुत बुरी जगह है। तो अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई। ये शहर अमन का गहवारा है और यहाँ हर किस्म के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह के गल्ला, अनाज, फ्रूट, मेवे, फल, हर किस्म की फरावानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई है। आप देखें कि मक्का ऐसा इलाका जो रेगिस्तान है, जहाँ पर कोई खेती नहीं हो सकती, जहाँ पे कोई भी बागात नहीं उगते सिवाय खजूर और ज़ैतून के। और अल्लाह ने वहाँ पे ऐसे-ऐसे किस्म-किस्म की चीज़ें पहुँचाई हैं, हर नियामत वहाँ पहुँचती है, जो हाजी वहाँ पे इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये किसकी दुआ थी ना? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की और जब अल्लाह से इंसान दुआ करता है, बंदा मोमिन दुआ करता है, तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं और उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, "ए अल्लाह, इस शहर को अमन का शहर बना।" अल्लाह ताला ने इसको बना दिया। यहाँ के बाशिंदे जो भी हैं, वो क़यामत तक के लिए जो है ईमान रखने वाले हैं, उन सब के लिए फलों की रोज़ियाँ दे। तो अल्लाह ताला ने बेहिसाब फल दिए, बेहिसाब रिज़्क दिए, बेहिसाब रोज़ियाँ हैं, बेहिसाब हर चीज़ अल्लाह ताला ने वहाँ दी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो काफ़िर होगा मैं उनको भी दूँगा, लेकिन थोड़ा फ़ायदा दूँगा। यानी कि आज देखें कि सऊदी अरब में क्या है ना, हर तरह के लोग होते हैं, गैर मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं और सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई हर लोग हैं, हर कोई रह रहा है। जो काफ़िर है उनको भी फ़ायदा पहुँचता ही है और लेकिन फिर उनका ठिकाना क्या है? उनका तो ठिकाना ही ये अज़ाब है, आग का अज़ाब है उनके लिए। सब कुछ दुनिया में मिल जाने के बाद फिर क्या उनका ठिकाना? आखिरत में उनका जो अंजाम है, वो ठिकाना उनका आग है। तो वो थोड़ा फ़ायदा उठा रहे ना, हालाँकि बज़ाहिर तो हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े बुर्ज खलीफ़ा है, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े इनके फ्लैट्स हैं, हर जगह इनकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े सब जगह इनका है। तो दरअसल देखिए कि आखिरत यानी जन्नत के मुकाबले में दुनिया का जितना भी बड़ा भी कितना भी बड़ा हमें दिखता है बज़ाहिर, वो आखिरत और जन्नत के मुकाबले में दुनिया के फ़ायदे बिल्कुल थोड़े हैं। जो इनको थोड़ा मिल रहा है और आखिरत में इनका जो ठिकाना है वो आग का अज़ाब है बस, जो बहुत ही बुरी जगह है। आयत 127 वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम काबे की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे और कहते जा रहे थे, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमसे कबूल फरमा। तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है। कितनी ज़्यादा आजिज़ी है इनकी दुआओं में। आप देखें कितना ज़्यादा अल्लाह से आजिज़ी इख्तियार की इन्होंने।
यानी आप दुआ भी देखिए कितनी खूबसूरती से माँग रहे हैं, और सबसे अहम चीज़ देखिए कि वो कितना बड़ा काम कर रहे थे ना। आज छोटे-छोटे इंसान मस्जिदों की तामीर करा के फूला नहीं समाता है ना। किस चीज़ की तामीर कर रहे हैं? खाने काबा की। खाने काबा की दीवारें ऊँची कर रहे थे, और खाने काबा सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से बनवाया था, फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से बनवाया था। फिर जब भी जो भी रसूल आते रहे, बनाते रहे, क्योंकि वक़्त-वक़्त पे इसकी जो दीवारें थी वो गिर जाती थी, और तूफ़ान नूह के बाद तो इसकी दीवारें जो नींव थी गिर गई थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इसकी दीवारें, बुनियादें ऊँची कर दें। इतना बड़ा ऑनर, इतना बड़ा काम करने के बाद आप देखिए कैसी आजिज़ी, इंकिसारी है ना उनके अंदर, और वो कैसी दुआएँ कर रहे हैं अल्लाह से। कह रहे हैं अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। और अल्लाह से आजिज़ी इख्तियार करते जा रहे हैं और दुआएँ करते जा रहे हैं ना। आज हम और आप क्या समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़े सारी ज़िंदगी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमने बहुत बड़ा हज भी कर लिया, हमने तो ख़ास करके 4-4 5-5 6-6 जुमे के दिन का हमने हज कर लिया है, और हमारी लिस्ट बहुत लंबी है और हम टेंशन फ्री हैं। आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया। हर तरह से अल्लाह ताला ने उनकी दुआएँ कबूल फरमाई। जब आज़माइश हुई तो फिर दर्जात की बुलंदी हुई, फिर दुआएँ अल्लाह ताला से उन्होंने की और अल्लाह ने उनकी दुआएँ कबूल फरमाई। सब कुछ देने के बाद भी, फिर अल्लाह का इतना बड़ा काम करने के बाद भी उनके अंदर कैसी आजिज़ी है ना। तामीर के वक़्त क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, अल्लाह तू इसे कबूल फरमा ले, और हमारी जो भी कोशिशें हैं और हमारी मेहनत है इसे कबूल फरमा ले। इससे पता चलता है कि इंसान के अंदर ना हर नेक काम करे तभी उसके अंदर आजिज़ी हो, इंकिसारी होनी चाहिए। कभी भी अपने नेक काम करने के बाद इंसान को गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं होना चाहिए। जो हम चंद नमाज़ें पढ़ के गुरूर तकब्बुर में मुब्तला होते हैं ना कि हम जहन्नुम से आज़ाद हो गए, पता नहीं हुआ, लेकिन हमारी नमाज़ें कबूल हुई कि नहीं हुई? हमने उसके तकाज़ों को पूरा किया भी नहीं कि पूरा किया। इससे बड़ी मिसाल हमें और कहाँ मिलेगी? इतना बड़ा काम कर रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना। ए अल्लाह कबूल फरमा ले हम सबसे, है ना? हमसे कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हम जो ये मेहनत कर रहे हैं अल्लाह से कबूल फरमा ले। बेशक तू ही सबसे ज़्यादा सुनने वाला है और जानने वाला है। हमारी तो नियतों में भी इखलास नहीं रहता है, हमारी नियतों में भी मिलावट आ जाती है। जब इंसान लोगों को सदका खैरात करता है, उसके दिल में मिलावट आ जाती है, नियतों में मिलावट आ जाती है। जब इंसान अल्लाह की राह में जिहाद करता है तब भी उसकी नियत में मिलावट आ जाती है। जब कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है, तब भी उसकी नियतों में मिलावट आ जाती है। लेकिन आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ़ खालिस अब अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह के लिए काम करके और अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, इसे कबूल फरमा ले। तो हमें इस आयत से यही सबक मिलता है कि बड़े से बड़ा नेक काम करने के बाद हम अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। और हर बड़े से बड़ा नेक काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की खातिर किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ़ नेक काम, हर जो भी नेक काम है दुनियावी और जो भी इबादती, जो भी इबादत के तरीके हैं, जो नेक काम है, हर नेक काम, उन सब में हमारी नियत इखलास सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। खालिस अल्लाह की खातिर हो, किसी और की खातिर नहीं हो, किसी और की रज़ा के लिए नहीं हो। और हम अल्लाह से ये दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमा ले इसे, तू राज़ी हो जा, और तू सबसे ज़्यादा सुनने वाला है, तू ही सबसे ज़्यादा जानने वाला है। आयत 128, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुज़ार रख, और हमें अपनी इबादतें सिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। तू तौबा कबूल फरमाने वाला है और रहम करने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए हमारे रब, तू हमें अपना फरमाबरदार बना दे, मुसलमान बना दे, मुसलमान बना ले, यानी इताअत गुज़ार बना दे, और हमारी औलादों में से भी, और हमारी जो एक जमात है ना उन सबको अपनी इताअत गुज़ारी में रख लीजिए अल्लाह। और अपनी इबादतों में हमें तरीके सिखा दे। यानी हमें नहीं पता कि हमें किस तरीके से नमाज़ पढ़नी है, क्या तरीका है, कौन-सा तरीके से हमें रोज़ा रखना है, या कौन-सा सही तरीके से रोज़ा रखना है, या नमाज़ों का तरीका क्या है, या हज का तरीका है। ये सारे तरीके अल्लाह हमको सिखा दे। आप देखिए कि इस आयत से कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है ना, कि पहले तो उन्होंने क्या दुआ माँगी, इतने बड़े ऑनर से अल्लाह ताला ने उनको सरफराज फरमाया कि यानी कि अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं। और दुआ, इससे भी पता चलता है जब इंसान अल्लाह के अच्छे-अच्छे नेक काम करे ना, उस वक़्त उस दरमियान दुआएँ भी अच्छी करे। यानी जब इंसान हज उम्रे के लिए जाए, या किसी अच्छे काम के लिए घर से निकले, सफ़र करे, या कोई भी नेक काम कर रहा है, तो वो दुनियावी लग्ज़ जो गपशप होती है, ये सब से परहेज़ करे और अल्लाह से दुआ करता रहे। अल्लाह से माँगता रहे। और क्या सबसे पहले माँगा उन्होंने कि मुझे मुसलमान रखिए, और मेरी ज़ुर्रियतों में भी सबको मुसलमान बना के रखें अल्लाह ताला, सबको, और सबको हम सबको ऐसी जमात
हम सबको ऐसी जमात बना दे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इताअत गुज़ारी करने वाले हों। और हम सबको बेहतरीन मनासिक सिखा दीजिए इबादत के बेहतरीन तरीके सिखा दीजिए और तौबा कबूल फरमा लीजिए। आप देखिए कोई गुनाह नहीं था उनका, क्या गुनाह था उनका ना? हर वक़्त तो उन्होंने अल्लाह के आगे सरेंडर किया था। फिर भी वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे, वतूब अलैना, तू मुझे माफ़ कर दे। तू सबसे ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है। हुँ, कितनी बड़ी आजिज़ी की दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्नी, उसके बाद क्या है तरीका उनका? वतुब अलैना, कि तू मुझे माफ़ कर दे। तो ये अंबिया का ऐसे ही तरीका मिलता है कि बड़े से बड़ा जब वो काम करते हैं, तब वो उनका यही रवैया होता है कि वही सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई कमी रह गई, कोताही रह गई, कुछ कुछ ऐसा कुछ कमी कोताही हो गई तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले और इस हमसे जो कमी कोताही हुई है तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमको माफ़ फरमा दे। और तू ही सबसे ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है, गफूरुर रहीम है। तो हमें भी इसी तरह से दुआएँ करनी चाहिए और हम सबको भी इसी तरह से अल्लाह से दुआएँ माँगनी चाहिए। बहुत खूबसूरत दुआएँ हैं। आयत 129 है, 129 रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो उनके पास तेरी आयतें पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत सिखाए और उन्हें पाक करे। यकीनन तू गलबा वाला है और हिकमत वाला है। तो अल्लाह के रसूल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो अल्लाह से दुआ कर रहे किस दरमियान? जब नींव उठा रहे थे खाने काबा की, वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इनमें ए हमारे रब उनमें एक रसूल भेज दे जो उनके पास तेरी आयतें पढ़े। तो यहाँ इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ है। ये भी अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, यानी कि उनके नस्ल में भेजा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालदा का ख्वाब हूँ। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप देखिए कि सोचने की बात तो ये है कि जो खाने काबा की दीवार ऊँची कर रहे थे ना, तो वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना, ये दोनों दुआ कर रहे थे। क्या दुआ कर रहे थे? हे हमारे रब, उन्हीं में से उन्हीं में से एक रसूल भेज दे, जो तेरी आयत पढ़े। यानी कि तेरी आयत पढ़े, उन्हें किताब और हिकमत अता फरमा दे। यहाँ पे किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल यानी कि हदीसें हैं। कुरान से यहाँ पे हिकमत से किताब से यहाँ जो आयत में किताब अल्फाज आया है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तो इनको सिखा दे तो किताब से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद हदीस है। तिलावत के आयत के बाद तालीम किताब और हिकमत की भी बयान मालूम होता है, यानी कि कुरान मजीद के फ़ज़ीलत और उसके अहकामात के बाद हमें किस चीज़ का मुताला करना चाहिए? हदीसों का मुताला करना चाहिए। क्योंकि हदीस भी एक दरअसल क्या है? अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई, वो वही ख़फ़ी कही जाती हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते थे। अल्लाह ताला उनको जो हुक्म देते थे, वो उसी तरह से करते थे। कैसे नहाना है, कैसे गुस्ल करना है, कैसे हकीके के अहकामात हैं, कैसे निकाह के अहकामात हैं, कैसे वज़ू करना है, कैसे किस तरह से सोना है, किस तरह से सोकर उठने के बाद हमें कैसे हमने ज़िंदगी गुज़ारनी, मिसवाक के क्या अहकामात, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने वही ख़फ़ी यानी कि वही ख़फ़ी कही जाती हदीस को जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो भी नाज़िल हुई। कुरान मजीद के साथ-साथ अल्लाह ताला ने हदीसों का भी नुज़ूल फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह के रसूलों ने जब खाने काबा की दीवारें ऊँची की और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला इनमें ऐसा रसूल भेज दे जो इन्हें किताब का और हिकमत सिखाए और इनका तज़किया भी करे और तू सबसे ज़्यादा ग़लबे वाला है और हिकमत वाला है। तो इनका तज़किया करा, गुनाहों से तज़किया है, शिर्क से तज़किया, हर तरह के ज़ाहिरी और बातिनी तहारत से इनको पाक करना है। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों की दुआओं को सुन लिया, कबूल फरमा लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2500 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन अरबों में मबूस फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।